Good morning, friends. We have done up to question number 13, right? That was the important question, 13 question. That was of Harsha and Chaya. It's a very important question. So, friends, today we are going to see the question number 14, Dharma and Karma. And clearly, they want to say that they shares the profit in the ratio of capital ratio, right? Capital ratio, that is different. From the following information, prepare the final account. So, let's see. The first is credit balance capital. So where we have to write partners capital credit side, sales trading credit side, goods return debit where we have to write it's a sales return. Sorry, it's a purchase return. Payables comes to liability. Salary outstanding liability. Loan of dharma liability. Discount received income. Bank overdraft liability. Current account of karma, current account credit side. Debit balance, you can see drawings. So partners capital debit side. Opening stock comes to debit side, trading. Purchase trading. Goods return credit, sales return. Receivables debit side, that is asset side. Salary, where we have to write, friends, salary profit and loss debit side. Machinery asset. Depreciation on machinery. If again the point comes of depreciation, so the earlier depreciation is no use. In that circumstances, we have to add this depreciation this particular machine. So in asset side, it becomes 71,760 plus 6240. Clear? Building asset, wages, trading, insurance premium, profit and loss, discount allowed, profit and loss, interest on loan, profit and loss, furniture asset, stationery expenses, where we have to write profit and loss, advertisement expense, profit and loss, cash balance asset, current account, debit side. First point is closing stock is 21,000, in which stationery of 2,000 is included. So it's clearly they want to say closing stock 21,000, but stationery is how much? 2,000. So what we have to do? So closing stock becomes 19,000. Closing stock becomes 19,000. That is trading account credit side and balance sheet asset side. Then the stationery. So tick mark on the stationery. Stationery expense, you can see tick mark on that here. Stationery expense. Then comes on machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%. I already said to you, if any such point comes, already the depreciation which is given, that is to be added in it. Okay, so depreciation to be added in the asset side. Credit sale of 1,000 record in the purchase return book by mistake. We have done the sales, but by mistake it has record in the purchase return. So tick mark on sales, tick mark on, okay, sales return is one and the same thing. This one, goods return credit, then comes purchase return, right? So credit sale, 4 entries will be there. Purchase return, right? And then creditors, because it's related to creditors, sales not recorded, then debtors. 1/4 of the advertisement expense is to be carried forward to the next year. So tick mark on the advertisement expenses, this one. Okay, so now we can start the sum. So let's see our columns. So this is the columns, friends, we require. Give the heading sum number 14, trading account of dharma and karma. Trading account of dharma and karma, 10 lines. Profit and loss account of dharma and karma, 15 to 20 lines. Partners current account, 6 to 7 lines. 6 to 7 lines.
balance sheet around one side, balance sheet around one side. Ready with the columns? So let's start the sum. The first is I can see is capital, right? So where we can go, friends, with the capital? Capital we have to write on partners capital credit side. So go to partners capital credit side. Partners capital, its current account is there in this sum. I can see. Yes, current account is there in this particular sum. So capital will come directly to balance sheet. Okay. So go to balance sheet. One lakh 40,000, 1,20,000, and 2,60,000. After capital, I can see sales account. Sales comes to trading account credit side. Goods return debit. What does it indicate? Good return. It's a indicates a purchase return. So purchase return comes to 2,000. Payables. Payable means what, friends? Liability. So go to liability, payables, creditors. 79,000. Salary outstanding. Salary milna baki. Outstanding salary 1,200. Loan of dharma. लोन कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज 30,000 और साथ में इंटरेस्ट जब आएगा तो देखेंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स एन इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. करंट अकाउंट ऑफ कर्मा. तो करंट अकाउंट में जाओ, कर्मा में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. अब डेबिट में देखते हैं. डेबिट में आपसे बोला है ड्रॉइंग्स अकाउंट. तो ड्रॉइंग्स में आओ, ड्रॉइंग्स अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में. ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड टू गुड्स 15,000. परचेज रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग. गुड्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न. Receivables मिलना बाकी है, that is what, friends? Debtors. Debtors में आओ, वहां लिखो 27,400 debtors. Salary 28/2 तक हमने भरा है, एक महीने का बाकी. तो कैलसी पे 13,200 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक महीने का मिलेगा, that is 1,200. राइट, ये रहा. Salary 13,200 plus outstanding salary 1,200, 14,400. इसका एक और एडजस्टमेंट आएगा फ्रेंड्स, कहाँ जाएगा? प्लस प्लस सेम साइड बैलेंस शीट लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रहा 1,200. मशीनरी कहाँ जाएगा? एसेट. देखो, और साथ में डेप्रिसिएशन में मैंने क्या बोला था कि प्लस कर दो अगर नया डेप्रिसिएशन है. बिल्डिंग एसेट. वेजेस रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग. वेजेस के बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम. एक्सपेंस है तो लिखो डेबिट में. डिस्काउंट अलाउड, वो भी अपने लिए खर्चा है. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है वो पॉइंट आया था, इसमें तो पूरा ही देना है आपको. इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा 1,200 दे के रखा है. अब अपना लोन कितना था यहाँ पे? लोन 30,000 का 6% 1,800. उस 1,800 में से 1,200 की बात हो चुकी है तो 600 प्लस करके बाहर आ जाएगा. फर्नीचर एसेट में ले लेंगे फर्नीचर. स्टेशनरी एक्सपेंस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट है इनर कॉलम. क्लियर हो रहा है ना सबको? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे. कैश बैलेंस कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? एसेट. करंट अकाउंट धर्मा
तो करंट अकाउंट में आओ, धर्मा में लिखो बैलेंस ब्रॉड 17,000. Adjustment number 1. Closing stock 21,000 in which the stock of stationery 2,000 is included. तो स्टेशनरी में जाओ, पहले तो स्टेशनरी में से माइनस करेंगे 2000, आउटर कॉलम 5000, माइनस माइनस ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000. फिर है क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा 19,000. इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट 19,000. फिर लिखा है मशीन पे डेप्रिसिएशन 10% देना है, तो 78,000 का 10%, 78,000 का 10%, 7800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70200. अब माइनस करें तो ऑपोजिट साइड, चलो वो भी ले लो. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये पूरा मिला के 7800. हम एक साथ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग लिखना है, डायरेक्टली हम ये 7800 लिख सकते हैं. चलो, क्रेडिट सेल ऑफ 1000 इज रिकॉर्ड इन द परचेज रिटर्न बाय मिस्टेक. गलती से परचेज रिटर्न में चला, तो परचेज रिटर्न में गलती से चला गया है, तो पहले तो सेल्स में प्लस करेंगे, जो सही हो करेंगे. सेल्स में प्लस कर दिया, डेटर्स उसमें भी प्लस होगा, तो फाइनल आ गया 28,400. नाउ गलती से कहां चला गया, परचेज रिटर्न में चला गया, यानी वहां से माइनस हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे. गलती से हमने माइनस कर दिया है, यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे. ध्यान रखना माइनस हो चुका, लेकिन क्रेडिटर में से क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे. क्रेडिटर में से क्या करेंगे, माइनस. क्रेडिटर में, क्रेडिटर्स में से माइनस, ठीक है. चलो, 1/4 of the advertisement expense is to be carried forward to the next year. अगले साल लेके जाना है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आओ, 1/4 कैलकुलेट करो, तो 9,000, आउटर कॉलम 27. इसका ट्रांसफर करो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 9,000, राइट. चलो अब सम टैली करते हैं. चलो फटाफट ट्रेडिंग में आओ, ट्रेडिंग में आओ जल्दी से. ट्रेडिंग का टोटल करो आप, ट्रेडिंग का टोटल करो, टोटल करो. टोटल आएगा 1,37,000. सामने भी वही टोटल करो, 1,37,000 माइनस करो, यू गेट 41,400, 41,400, ठीक है. अब इसे ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स, वी हैव टू ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफर, 41400, राइट. बट वी कैन सी दैट कि डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट का टोटल आप पहले करो, डेबिट का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो. इट शुड कम 61,000, 61,000 का टोटल आएगा. अब यही टोटल सामने लिखोगे, यही टोटल सामने लिखोगे आप 61,000. अब माइनस करके गैप आ रहा है 13,000. करो, आई एम वेटिंग फॉर इट, 2 मिनट, जल्दी करो. हो गया 13,000. रेशियो में बांट दिया, कैपिटल रेशियो बोला है आपको, याद हो तो याद है 1,40,000 और 120 आया, तो कैपिटल रेशियो पता चला कैसे ढूंढा हमने. देखो कैपिटल क्या दिया है आपको उन्होंने, 140, यानी मैं कह सकता हूँ 40 और दूसरे का क्या है 12. अब इसको रेशियो में कन्वर्ट किया है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है इसको. तो फाइनल आंसर आ रहा है 7 आ रहा है, और 6 आ रहा है, 7:6, इसलिए 7:6 आया, ठीक है. 7,000, 6,000. चलो इसे आगे लेके चलो. करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करो.
divisible loss 7,000 6,000 7,000 6,000 इसे ट्रांसफर करो, हो गया। अब इसका टोटल धर्मा का देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, दैट इज 31500, यही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 31500 और माइनस करके आपको यू गेट दिस आंसर 31500 का बैलेंस आएगा। सही है। अब वैसे ही कर्मा का टोटल करेंगे। कर्मा का टोटल आ रहा है 14,000, वही टोटल आप सामने लिखोगे और माइनस करोगे, यू विल लेफ्ट विद 3,000। तो आपको पता है जो जहां है उसके नीचे आएगा, यानी कर्मा का बैलेंस सीधे जाएंगे तो लायबिलिटीज में आएगा और धर्मा का बैलेंस सीधा जाएगा तो ऐसे। तो लिख दो करंट अकाउंट ये रहा 3,000 और ये करंट अकाउंट धर्मा 31,500। अब इसका टोटल करोगे आप, चलो करो 2,60,000 3,000 30,000 80,000 2,800 1,200 600 और 700 टोटल करो, तो यू गेट 378,300। वैसे ही यहाँ पे भी टोटल करो एसेट का 70,200 मशीन का याद है डेप्रिसिएशन, 80,000 87,000 28,400 51,200 19,000 फिर 2,000 फिर 9,000 फिर 31,500। सो टोटल आएगा 378,300। सो फ्रेंड इसके साथ हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है धर्मा और कर्मा। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे 15th वन हर्ष और यशा का सवाल। तो बेटर रहेगा कि आप इसे एक बार रीड करके रेडी रहना, तो नेक्स्ट पीरियड में अपना अच्छी तरीके से हम ये सम कर सकते, राइट। सो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करो बराबर, विदाउट प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अच्छी तरीके से काम करो, ठीक है। बहुत जल्दी टेस्ट होंगे आपके। टेक केयर, गॉड ब्लेस।